Iran has over 3,000 missiles. Some of them just reached a US base in the Indian Ocean 4,000 kilometers away. Here is what Iranian missiles arsenal actually looks like and why the world is paying attention. You keep hearing about Iran firing missiles in this war. But what exactly does Iran have and how dangerous it is really? Iran holds the largest ballistic missile stockpile in the entire Middle East. The total arsenal is estimated around 3,000 missiles of varying types of range. And here is the key thing to understand. Iran built all of these precisely because it knows it cannot compete with American in the air. Its air force is outdated, so missiles become its equalizer. Defense analysts describe Iran's missiles force as the Middle East's largest and most varied, spanning ballistic and cruise missiles and designed to give Tehran reach even without a modern air force. Now let me explain the three layers of this arsenal. The short-range missile system like the Fateh, Zulfikar and Qum have a range of roughly 150 to 800 kilometers. These are built for rapid strikes on nearby targets and can be launched in a large valleys to overwhelm air defense system. Iran used exactly this playbook in 2020 when it fired at a US base in Iraq after the killing of Qasem Soleimani, injuring over 100 Americans persons. The medium-range system, including the Sijal, Khorramshahr, Ghadar and Imad, can travel between 1,700 to 2,000 kilometers, putting Israel-US bases across the Gulf and much of the wider region securely within reach. Then there are the hypersonic missiles. Iran's Fateh 1 and Fateh 2 are hypersonic missiles, reportedly capable of Mach 13 speeds, making them extremely difficult to intercept. And now the most alarming development of the war. Iran fired two missiles at Diago Garcia, a joint US and UK military base in the Indian Ocean, roughly 4,000 kilometers from Iran. The attack failed to hit the base, but it demonstrated that Iran might no longer be sticking to its self-imposing 2,000 kilometers range limit, raising serious concerns about whether European bases and US intercepts much further away could now is being in range. This is not just a Middle East problem anymore. The reach is expanding. इस्लामाबाद में एक बार फिर से जो है वो एक टिकटॉकर का कत्ल मंजर आम पर आया है। ईद उल फितर के पहले दिन एक और सोशल मीडिया स्टार की ज़िंदगी जो है वो खून में नहा गई। इतलात के मुताबिक टिकटॉकर सना जावेद जो आउट लुफारा के नाम से जानी जाती थी, टिकटॉक पर काफ़ी फेमस थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस थी, उनके अपने ही शोहर ने एक मसरूफ मार्केट की पार्किंग एरिया में फायरिंग करके जो है अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया। वाकया इतना अचानक और होलनाक था कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को गोली मारने के फौरन बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली और दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद सादिक, जो साबिक पुलिस कांस्टेबल था, पहले ही मुलाजमत से बर्खास्त हो चुका था और इब्तदाई तहकीकात में घरेलू तनाज़े या फिर ज़ाती इख्तिलाफात के वाक़े की मुमकिना वजह जो है उसको करार दिया जा रहा है। इस वाक़े का जायवोका से 9mm पिस्टल और गोलियों के खोल जो है वो बरामद हुए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डाटा भी हासिल कर लिया गया है, जिसकी मदद से मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें भी देखा जा सकता है कि किस तरह से सना जावेद को जो है वो गोली मारकर कत्ल किया गया और उसके बाद हस्बैंड ने खुद भी खुदकुशी कर दी। ताज़ा तरीन अपडेट्स की अगर बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और दोनों अफराद के डिजिटल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया सरगर्मियों का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ये भी देखा गया है कि ये वाक़या महज एक घरेलू झगड़े का नतीजा हो सकता है, क्योंकि कुछ इतलात और कुछ दबाव के तनाज़े जो हैं वो मौजूद थे। ये वाक़या इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि हर गुज़श्ता एक साल में हम देखते हैं कि किसी ना किसी खातून टिकटॉकर का कत्ल होता है। इस्लामाबाद में हमने देखा कि जून 2025 में सना यूसुफ को भी इसी शहर में कत्ल किया गया था, जहाँ पुलिस के मुताबिक कातिल ने बार बार इनकार करने पर सना यूसुफ को निशाना बनाया था। मुसलसल वाक़यात जो है वो कई संगीन सवालात खड़े करेंगे। क्या सोशल मीडिया पर नुमायां होना ख़वातीन के लिए ख़तरा बनता जा रहा है या फिर हमारा मुआशरा अब भी ख़वातीन की आज़ादी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक अलमिया है जिसमें एक और ज़िंदगी, एक और ख्वाब और एक और कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। पुलिस जो है वो अभी भी तफ्तीश कर रही है क्योंकि जिसने कत्ल किया उसने खुद भी खुदकुशी कर ली है, लेकिन जो स्टार्टिंग अपडेट्स दी जा रही हैं, जो स्टार्ट की थोड़ी डिटेल्स दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि घरेलू लड़ाई झगड़ा या फिर सोशल मीडिया जो है इसकी अहम वजह बताई जा रही है इस पूरे हादसे की।
है।